Hello everyone. I'll start with my introduction first. I'm Rahul Bhatt. I was born in Udhampur district in Jammu and Kashmir. For 6 years, I lived in Udhampur. I did my basic schooling from there, Army Preparatory School. After that, my father got transferred to Delhi, and we lived in Delhi, and I did my primary, secondary, and higher secondary education from Lovely Public Senior Secondary School, East Delhi. After that, I did my mechanical engineering from MIT Pune, and I graduated in 2014. I got campus placed in 2 companies. One was Mu Sigma and other was Mahindra & Mahindra. I joined Mahindra & Mahindra, and I had worked in Mahindra & Mahindra Limited for 1.5 years. By the end of 2015, I quit my job and decided to pursue civil services examination. Meanwhile, there was a constant conflict between materialism and purpose. The purpose was to serve national interests, but there is a constant conflict during your job, etc. So it was by the end of 2015 that there was a definiteness of purpose, which was to serve national interests, and I decided it would be better if I pursue my purpose rather than materialism. I quit my job and I started preparing for civil services examination. I gave my first attempt in 2016. I cleared my prelims in my first attempt with 150 out of 200 marks. But I left short of 2 marks in mains to get an interview call. I did not get an interview call. The cutoff was 787 in mains. I had scored 785. It was a sad moment for a few days, but there is some self-help books which motivates you daily. फिर देखी कि कमियां क्या हैं खुद में, उनको सुधारा. At such moments you need some motivation. मेरे लिए motivation हरिवंश राय जी की कविता बनी, जिसमें ये था, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो इस तरह की मैंने कविताएं पढ़ी और मैं थोड़ा इंस्पायर्ड हुआ बिकॉज और एक सेल्फ एफर्मेशन खुद में रखा कि आई हैव हैड दिस फेलियर बिकॉज आई हैव टू विन सब्सटेंशियली नेक्स्ट टाइम. तो इस मोटिवेशन के साथ मैंने अपने डिजायर को और स्ट्रॉन्ग किया, एंड आई टुक ए फर्म डिसीजन टू कंटिन्यू इट, एंड आई एंड्योर्ड दैट डिसीजन विद कॉन्स्टेंट पैशन. और उसके बाद माइक्रो प्लानिंग और मैक्रो प्लानिंग रखी. मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग के बाद इमेंस अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिसिप्लिन बियर्स कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंसी विल मेक यू परसिस्ट. And as Napoleon Hill says in one of his books, failure can never cope up with persistence. Failure और persistence आपस में बड़े दुश्मन है. आज नहीं तो कल आपको जीत मिल ही जाएगी. We have had many stories who have cleared civil services. All India rank 1 in his 5th attempt. So it is a story of persistence. अगर आपका desire strong है, अगर आपने firm decision ले लिया है, अगर आप में passion है, अगर आप में माइक्रो और मैक्रो प्लानिंग है, और अगर आप में इमेंस अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन है, तो आपकी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस की बदौलत आप फेल कभी नहीं होंगे. सूनर और लेटर इन यूपीएससी एज वेल एज इन लाइफ यू विल सक्सीड, यू विल ग्रो. उसके बाद मैंने इन्हीं प्रिंसिपल्स के सहारे 2017 में प्रीलिम्स दिया, क्लियर हो गया. मेंस दिया, क्लियर हो गया. इंटरव्यू दिया, क्लियर हो गया. एंड विद गॉड्स ब्लेसिंग्स ऑल्सो, इट इज नॉट ऑलवेज गेटिंग इन टू टॉप 100 इज नॉट ऑलवेज ड्यू टू हार्ड वर्क. देयर इज there should be a belief that people repose in you, which create good vibes around you where you can thrive in a better fashion. You need blessings of people also. So it is also due to the blessings and belief that people repose in you that you get something like top 100. I have learned failures
So I can better guide what not to do rather than what to do. Because there are many misguiding and misleading information about how to crack civil services. There is an ocean of information in the market. Well for personality development and holistic growth. But to crack this civil services exam, you need a key. आपको सबसे पहले यूपीएससी की नब्ज पकड़नी पड़ेगी, ये चाहता क्या है हमसे. Then you'll have to proceed with the preparation. I'll share the sources with you, which would make the preparation very easy and condensed. I'll start with this. The first thing which everybody should do, I'll start with an anecdote. A passenger who boards a train without a ticket has a feeling that he is going somewhere, but he is going nowhere. वो टिकट आपका सिलेबस है. अगर आपने सिलेबस नहीं डाउनलोड किया है, अगर आपने उसको प्रिंट आउट नहीं निकाला है, और अगर आपने उसको पढ़ा नहीं है, तो आप उसी पैसेंजर की तरह हैं जो ट्रेन में चल तो रहा है और उसको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पहुंच रहा है. He will reach nowhere. There is no destination. So you need a syllabus. आपको सिलेबस प्रिंट करना है, डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और उसको पढ़ना है सबसे पहले. उसके बाद आपको पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना है. चलो पास्ट 10 इयर्स नहीं तो 2013 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है. क्वेश्चन कैसे आते हैं प्रीलिम्स में, क्वेश्चन कैसे आते हैं मेंस में, आपको वो देखना है. ओनली देन आप यूपीएससी की नब्ज पकड़ पाएंगे. आपको लगेगा कि ये चाहता क्या है हमसे, ये पूछना क्या चाहता है. कुछ टॉपर्स की आप आंसर बुकलेट्स देखिए, उनको देखिए उन्होंने किस फैशन में आंसर्स लिखे हैं. इंट्रोडक्शन, प्रोज, कॉन्स, कंक्लूजन. बिकॉज एट द एंड इट इज आंसर राइटिंग विच विल मेक यू थ्रू, not your intense knowledge or anything else. You need a knowledge base, but you have to express it in a wise fashion. And that will only come if you will look at what UPSC really wants. You should be able to discern in the first moment what will be asked and what will not be asked in the paper. What you read and what not to read. For example, there is an ocean of information in the market. DD Basu पढ़ो, सुभाष कश्यप पढ़ो. अरे भैया नहीं पढ़नी है. You have to read लक्ष्मीकांत and that is the Bible. 4 बार पढ़ लो उसको. And produce that knowledge with the help of newspaper, current affairs, monthly, in answers, test series. आप पढ़ेंगे सुभाष कश्यप, आप पढ़ेंगे डीडी बसु, आप लक्ष्मीकांत छोड़ देंगे. इट इज फाइन फॉर होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आप सब पढ़ते हैं. फाइन. आई हैव हर्ड मेनी टॉपर्स स्पीक. मैंने क्वेश्चन 1 के लिए माई डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी थी. सेकंड क्वेश्चन के लिए पैक्स इंडिका पढ़ा था. यू नीड टू रीड ओनली 1 करंट अफेयर मंथली. You need to have a cursory reading of योजना. 10 दिन मत लगा देना योजना पढ़ने के लिए. आप प्रीफेस पढ़िए और जो बॉक्सेस हैं, समरी बॉक्सेस हैं योजना में, वो पढ़िए. इनफ. 1 आवर योजना डन. 10 डेज मत लगाइए यार योजना पे. एक टॉपिक पे 50 पेज हैं, 10 आर्टिकल हैं. पढ़िए. इंफॉर्मेशन अगर चाहिए पढ़िए 3-4 साल तक. If you want to crack civil services in the first attempt or max in second attempt, आपको अपने sources limited रखने हैं और उन्हीं को optimize करना है. Limited sources, maximum optimization, and that is UPSC's testing. In a bureaucrat also, in a civil servant also. आप district में जाएंगे, आप foreign policy को handle करेंगे, तो वहां पे क्या होगा भैया? वहां पे limited resources होंगी. You'll have to make maximum optimization out of that. आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए. द हिंदू इज वेरी रेलेवेंट. इट इज वेरी गुड फॉर मेंस आंसर राइटिंग, स्पेशली एडिटोरियल्स.
The Indian Express is also good. It makes you intelligent. But if you want to aim civil services mains, Hindu is enough. Read that daily, read that thoroughly for 1.5 hours. आप पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र योजना, ये सब जो रेलेवेंट है वो नहीं पढ़ेंगे. So I'll start with book list, which will be very condensed, which would be the basic minimum required to crack this services. और फिर इन किताबों में पढ़ते पढ़ते आपको कुछ चीज इंटरनेट की भी मदद लग सकती है. आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो आप इंटरनेट से देख सकते हैं. दैट इज अप टू यू. यू विल ब्रांच अपने आप, यू विल ड्वेल अपने आप, मगर यही सोर्सेज लिमिटेड रखिए. डोंट स्प्रेड आउट योर सोर्सेज. मेरा मकसद आपको स्ट्रैटेजी या कुछ और बताना नहीं है. मेरा मकसद आपकी प्रिपरेशन को लिमिटेड रखना, अपनी प्रिपरेशन को कंडेंस्ड बनाना है. बुक लिस्ट, ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन पूरे मार्केट में है. राजेंद्र नगर से ज्यादा कहीं पे नहीं है इंफॉर्मेशन पूरे इंडिया में. मगर मैं 10-12 किताबें बताऊंगा, वो कर लीजिए. विद इमेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस and more creativity included in answers through constant practice in test series, you will clear this exam for sure. So I'll share the book list. Polity लक्ष्मीकांत लिख लीजिए और खरीद लीजिए. Geography 11th and 12th NCERT on Lee. I have never read GC Leong. It is good for advanced study. Fine, if you read it, fine. बट अगर आपके टीचर ने 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई है, और अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है और उसमें आंसर्स अच्छी तरह लिखे हैं, और उसका मॉडल आंसर कॉपी जो मिलता है आपको, आपने वो अच्छी तरह पढ़ लिया है, दैट इज इनफ. क्योंकि मॉडल आंसर कॉपी, टेस्ट सीरीज में वो सब जीसी लियोंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड कर लेगा. But you need to have basic conceptual understanding through NCERTs. You need to be very thorough with ocean currents. आपको उसके लिए टीचर की जरूरत है, गाइड की जरूरत है. उसके लिए रेफरेंस की जरूरत भी आपको पड़ सकती है जीसी लियोंग या सविंदर सिंह से. बट अगर आप सविंदर सिंह पूरी पढ़ेंगे, दैट इज वेरी फूलिश फॉर जनरल स्टडीज. कहने का मेरा मतलब है 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके कंसेप्ट्स क्लियर करिए, मॉनसून्स को क्लियर करिए, ओशन करंट्स को क्लियर करिए, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है. उसके लिए आपको गाइड की जरूरत है, मेंटोर की जरूरत है. अगर आपके पास अच्छा मेंटोर है तो 11th एंड 12th एनसीईआरटीज आर फाइन. हिस्ट्री 11th एंड 12th तमिलनाडु एनसीईआरटीज ऑन ली फॉर जनरल स्टडीज अच्छी तरह. पर ये जो मैं सोर्सेज बोल रहा हूं, इनकी एक एक लाइन पढ़नी है टॉप टू बॉटम. 11th एंड 12th तमिलनाडु एनसीईआरटीज प्लस स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए टॉप टू बॉटम. अगर 11th और 12th की तमिलनाडु की एनसीईआरटी ड्राई लग रही है तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए. वो ड्राई लग रही है तो थीम्स पढ़ लीजिए, थीम्स 1, 2, 3. मगर एक सोर्स फिक्स कर लीजिए और वो पढ़ लीजिए. इसके बाद एनवायरमेंट, शंकर आईएएस की बुक टॉप टू बॉटम बस. और उसके साथ साथ करंट अफेयर जो भी अपडेट होता रहेगा मंथली में और न्यूज़पेपर में. शंकर आईएएस में आखिरी में नेशनल पार्क्स हैं, रिवर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, माइक साइट्स हैं, एलिफेंट साइट्स. उनको थोड़ा सा आप इंटरनेट पे जाके थोड़ा और पढ़ लीजिए. टाइगर रिजर्व्स हैं, किस स्टेट में है, किस नदी कौन सी नदी पास हो रही है उधर से, वो वहां से पढ़ लीजिए आप. थोड़ा सा ब्रांचिंग आउट जो मैं कह रहा हूं वो इन्हीं चीजों में करिए. इकोनॉमिक्स, संजीव वर्मा की किताब है, 250 पेज की किताब है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, प्रोवाइडेड कंसेप्ट्स आर मेड क्लियर बाय द टीचर. अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो संजीव वर्मा आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में. मगर अगर एक बार कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं किसी मेंटोर, गाइड या किसी भी साइट से, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल बड़ी अच्छी साइट है, उसके लिए आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं. बड़ी बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर कर देगा. उसके बाद आपको वो 250 पन्नों की किताब पढ़नी है संजीव वर्मा बस, और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, और करंट अफेयर करना है. करंट अफेयर मंथली अपडेट होता रहना है इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है. इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड है, रेरा है,
बहुत सारी चीजें हैं, वो करंट अफेयर मंथली आपको अपडेट करना है, बट बेसिक मिनिमम जो है वो एक किताब है संजीव वर्मा, 250 पन्ने की किताब। उसके बाद करंट अफेयर मंथली किसी भी एक की कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इन बेसिक मिनिमम किताबों के बाद आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। उसमें फीडबैक जो मिलेगा मेटिक्यूलसली उसको रीड करना है, फीडबैक को, और इंप्रूव करना है नेक्स्ट टेस्ट में। इंटरनेट सोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट। IAS बाबा का TLP कर लीजिए, थिंक लर्न परफॉर्म, 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स के बाद रोज वो देता है, सिनॉप्सिस भी देता है, वो कर लीजिए। मेंस का आंसर अलॉन्ग विद जहां पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे वहां पे भी, प्लस घर पे बैठकर 5-5 क्वेश्चंस भी अगर आप कर रहे हैं रोज, दैट इज इनफ। इंटरनेट को काफी कैलिब्रेटिवली यूज करिए। इकोनॉमिक्स के लिए एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 1 पार्ट 2, अब तो शायद कंबाइंड हो गई है, 2017 में शायद कंबाइंड थी, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। मगर अब अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में मैप करेंगे, लाइन चार्ट पढ़ने बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको लाइन चार्ट, मैप्स, फिगर्स ये सब स्किप करने हैं। आपको एक कर्सरी आइडिया होना चाहिए एक चैप्टर का कि कहना क्या चाहता है ये चैप्टर, व्हाट डज इट रियली वांट टू से, दैट इज इनफ। डोंट गो टू डीप इनटू इकोनॉमिक सर्वेज, ओके, जस्ट हैव अ रीडिंग ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। न्यूज़पेपर द हिंदू मैंने कह दिया, वेरी गुड फॉर मेंस आंसर राइटिंग, मेटिक्यूलसली पढ़िए। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को। कुछ लोग पता नहीं क्या 500 पेज की किताब पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता ही नहीं है। कृष्ण देवराया का आर्ट आ जाता है, गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट आ जाता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए ओनली 1 बुक, मैंने तो एक ही किताब पढ़ी, इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर, NCERT क्लास 11। अगर टाइम मिले तो NIOS का मटेरियल पढ़ लीजिएगा, नथिंग मोर देन दैट। क्वेश्चन तब भी नहीं आएगा, वो हो सकता है क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर में से भी ना आए जो मैंने बताया किताब, बट यू नीड टू हैव अ बेसिक लिमिटेड सोर्स एंड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया हैड बीन। बुद्धिस्ट आर्ट कैसा था, गांधार आर्ट कैसा था, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट कैसा था, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कैसा था, स्टूपा आर्किटेक्चर कैसा था। क्योंकि आर्ट के बारे में आप ना जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तमिलनाडु की NCERT या कुछ, या ओल्ड NCERT, उसमें आपको मुगल टाइम का आर्ट भी आएगा, वो चैप्टर आएगा, उसी में इंक्लूड हो जाएगा। आर्किटेक्चर क्या था, बुक्स क्या लिखी जाती थी इस टाइम पे, अबुल फैजल ने कौन सी किताबें लिखी, डोम स्ट्रक्चर कैसा था, बल्बस डोम एटसेट्रा, वो आपका NCERT में ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट different sources while writing an answer for art and culture. No deep study in any subject, short and condensed study and more answer writing practice so that you can connect various things and include that into your answer. तो ये हो गया प्रीलिम्स का। अब मैं मेंस का बताऊंगा। मेंस में भी सिलेबस जो है, सिलेबस आप ब्रॉडली आप देखिए, टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग करिए, हर एक टॉपिक क्या है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए, 4-5 पेज पढ़ लीजिए कहीं से सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। NGOs, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, NGO क्या है, इनका रोल क्या है डेवलपमेंट में, चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं ये, किस तरह से इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का इनके फंक्शनिंग में, और क्या हो सकता है, बस दैट्स इट। NGO हो गया खत्म। प्रेशर ग्रुप्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स, इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स, डन, वेव अहेड। डेमोक्रेसी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा सीधा सिंपल पूछा जाता है, कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बड़ा ही ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार सिंपल क्वेश्चन था, प्रेशर ग्रुप टॉपिक है सिलेबस में और क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट, व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स and what are informal pressure groups। एक टॉपिक है पॉवर्टी एंड हंगर, आपको सिर्फ 5 पेज करने हैं। पॉवर्टी क्या है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अमर्त्य सेन ने क्या कहा पॉवर्टी के बारे में, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होता है,
स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है पॉवर्टी के लिए, कि सिर्फ ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है कि कुछ स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट भी है? क्या करना चाहिए पॉवर्टी के लिए, क्या सरकार ने किया है पॉवर्टी के लिए, क्या वो इंप्लीमेंट हो रही है पॉवर्टी के लिए? 10 पेजेस मैक्स। और पॉवर्टी डिसाइड करने की लाइंस क्या बनी है, कमिटीज क्या बनी है, रंगराजन हो गया, तेंदुलकर हो गया, एटसेट्रा। बस 10 पेजेस, पॉवर्टी एंड हंगर। इस बार का क्वेश्चन है, गत वर्षों में पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करने के लिए सरकारों ने क्या महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं और क्या और महत्वपूर्ण योजनाएं कर सकती हैं? दिस वॉज द क्वेश्चन। You need to be a passenger who has a ticket in his hand to reach a destination. आपको सिलेबस करना है डाउनलोड, आपको पॉवर्टी के बारे में 10 पेज पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है। आपको डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स नहीं खरीदनी है कहीं से, अमर्त्य सेन की 200 पेज नहीं पढ़ने हैं। आपको सिर्फ 10 पेज पढ़ने हैं, कहीं से भी मार्केट से कहीं से 10 पेज लेके आ जाइए। पॉवर्टी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, 10 पेज कहीं से इकट्ठे कर लीजिए, दैट्स इट। डू यू अंडरस्टैंड? कहने का मतलब है मेंस में आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए, और जो कुछ कर्सरी टॉपिक्स हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट पूछा जाता है, करंट अफेयर्स मंथली करिए अच्छी तरह। डिजास्टर मैनेजमेंट, करंट पूछा जाता है, वो करिए अच्छी तरह। इंटरनल सिक्योरिटी, करंट पूछा जाता है, वो करिए अच्छी तरह। आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं करने। हाँ, थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, अगर पता ही नहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, सिंडिकेट्स क्या होते हैं, क्राइम सिंडिकेट्स, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेशन आप हर एक टॉपिक की समझ लीजिए और उसके बाद करंट अफेयर से अपडेट होते रहिए। क्योंकि इस बार का क्वेश्चन देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या आया था, मॉब वायलेंस, वाज़न्ट इट करंट? कि लिंचिंग हो रही है, ये हो रहा है, एटसेट्रा, हाउ इट इज इंपैक्टिंग, व्हाट आर इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, किस तरह से डील करना चाहिए, कॉजेज क्या है मॉब वायलेंस के। द हिंदू में रोज ही अपडेट होता रहता है। तो ये जो कर्सरी टॉपिक्स हैं, साइंस एंड टेक एटसेट्रा, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इनको आप करंट अफेयर मंथली से कवर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका बेसिक टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग है जो सिलेबस में दे रखा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर फ्रॉड क्या होता है। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक फोर्थ सब्जेक्ट आता है, तो GS1, GS2, GS3। GS1 में सोसाइटी एक सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको कोई राम आहूजा वगैरह नहीं पढ़नी है, जनरल स्टडीज के लिए कह रहा हूं। 12th और 11th की NCERT करनी है, 300 पेजों की, 150 पेज, दैट्स इट। एक सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट है एक किताब, और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की क्या है आई डोंट नो, 2 किताबें हैं बस 11th और 12th की, बस वही करनी है, 300 पेज। उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सोसाइटी के, कि कास्ट क्या होता है, कास्ट एज ए मार्केट इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। पिछले साल का क्वेश्चन डायरेक्ट था, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव क्या है इंडिया पे। सिंपल। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन टॉपिक्स की, अगर आपने ये 2 किताबें पढ़ रखी हैं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है विद, फिर मैं कह रहा हूं, करंट अफेयर को अपडेट करते हुए। फॉर एग्जांपल, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आता रहता है, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। चाइल्ड लेबर एक्ट, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। डिफरेंटली एबल्ड एक्ट, पिछली बार आया है क्वेश्चन, इट वॉज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। सुगम भारत अभियान। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दीज 2 बुक्स, NCERTs, only these 2 understanding NCERTs, and updating yourself daily in society and social issues with the help of current affairs monthly and newspapers. That's it. GS1 हो गया, खत्म। GS2 पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, करंट अफेयर मंथली, हिंदू न्यूज़पेपर एंड टेस्ट सीरीज। गवर्नेंस में पॉवर्टी है, हंगर है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमें टैकल करने होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, NGOs हैं, इनकी बस कहीं से मार्केट से 5-5, 10-10 पेज की चीजें उठा के लेके आ जाइए, हर एक टॉपिक के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज,
आंसर राइटिंग और करंट अफेयर मंथली से अपडेट होते रहना इन चीजों में कि कहां पे मैं कौन सा कंसेप्ट अपने गवर्नेंस में यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल एनजीओज में पिछले साल बड़ा बहुत इश्यूज थे एनजीओज के, हाउ गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग इन एनजीओ वर्किंग, how the NGO is hampering also the unity, integrity and sovereignty of India. There were cases of terror financing, etc. How government is regulating, what is the way ahead. ये तो न्यूज़पेपर में था पूरे साल। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विद दीज सोर्सेज जो मैंने कहा 5-10 पेजेस, अपडेटिंग विद करंट अफेयर मंथलीज एंड न्यूज़पेपर रीडिंग। You will write a very creative and a brilliant answer in mains. और टेस्ट सीरीज में जब आपको फीडबैक मिलेगा आप उस पर मेटिकुलसली वर्कआउट कीजिए और अगली बार जिस तरह से उन्होंने आपको फीडबैक दिया उसी पे वर्कआउट करके एक अच्छा आंसर अगली बार लिखिए। मैं अपना आंसर कैसे लिखता था, इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट 1-2 लाइनों का, फिर डायरेक्ट टू द पॉइंट, प्रोज क्या है इस चीज के, कॉन्स क्या है इस चीज के, या आर्ग्यूमेंट्स फॉर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, और एक कंक्लूजन, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल आप इन चीजों पे वर्कआउट कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन क्या होता है, इलस्ट्रेट क्या होता है, इलस्ट्रेट में कुछ एग्जाम्पल्स इंक्लूड कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन पे आप थोड़ी सी आलोचनात्मक टिप्पणी करिए जो भी स्टेटमेंट दे रखी है आपके इसमें। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम द क्वेश्चन वाज क्रिटिकली एग्जामिन द एनजीएसी वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो मेनी पीपल हैव रिटन इट वॉज राइट एंड एनजीएससी को एबॉलिश करना सही था फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड टू प्रिजर्व द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद केशवानंदा भारती केस एटसेट्रा। बट इट इज आस्किंग यू टू क्रिटिकली एग्जामिन द एनजीएससी वर्डिक्ट। सो आप पहले लिखिए कि व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ बाय सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आप लिखिए, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन बोला है, आप लिखिए कि व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ बाय द गवर्नमेंट, कि क्यों देयर शुड बी अ रोल ऑफ लॉ मिनिस्टर ऑल्सो इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बिकॉज जस्टिस इज अ वेरी फ्लूइड कंसेप्ट एंड इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन अ सीलो. It has to have a coordination between executive and legislature and judiciary. People have a stake in the justice delivery system, and executive and legislature are the representatives of people. तो आप काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये लिखिए कि भैया एनजेएससी में आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए इस चीज की, एंड देन प्रोसीड विद अ वे फॉरवर्ड. पॉइंट्स में लिखिए वे फॉरवर्ड कैसे. एमओपी हैज बीन डिवाइस्ड, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसमें एक साझा रोल होगा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में. मोर ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशरी, कोलेजियम अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी लाइए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रिकॉर्ड कीजिए. इस तरह से आपको अपना आंसर और अप्रोच करना है. So I have dealt with this. तो पेपर 2 इज ऑल्सो क्लियर. इंटरनेशनल रिलेशन है पेपर 2 में, उसको मैंने बोल दिया कि करंट अफेयर मंथली से अपडेट होते रहिए. पेपर 3 इकोनॉमिक्स भी बोल दिया, संजीव वर्मा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. एंड पेपर 3 इज मल्टी डिसिप्लिनरी. इसमें थोड़ा ज्योग्राफी के भी कंसेप्ट्स आएंगे. रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आया था थर्ड पेपर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है इससे एटसेट्रा. तो थोड़ा लिंक भी करिए कुछ सब्जेक्ट्स को, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को लिंक करिए. एग्रीकल्चर के कंसेप्ट्स हैं, लैंड यूज पैटर्न है जिसमें थोड़ा ज्योग्राफी का भी कंसेप्ट है. उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस चीज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करंट अफेयर्स मंथली और न्यूज़पेपर से अपडेट करिए. बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं इन वर्ड्स पे. उसके बाद फोर्थ पेपर आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड एंड गवर्नेंस. लेक्सिकन से आप बेसिक टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए बस. केस स्टडी को समझिए. पुट योरसेल्फ इन दैट शू, इन द शू ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेटर और एनीथिंग दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द केस स्टडी, और उस तरह से हैंडल कीजिए. स्टेक होल्डर्स लिखिए. उसके बाद आप सर्टेन ऑप्शंस डिस्कस कीजिए. बेसिक से स्टार्ट होइए कि ये करूंगा, इसके प्रोज ये हैं, इसके कॉन्स ये हैं. 2-3 ऐसे सॉल्यूशंस दीजिए और तीसरा सॉल्यूशन बेस्ट दीजिए और कंक्लूड करिए. केस स्टडी ऑल्सो डन. और टर्मिनोलॉजी को स्ट्रांग रखिए.
बड़े ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? दिस टाइम द क्वेश्चन वाज दिस. सो डेफिनेशंस को बड़ी स्ट्रांग रखिए. इमोशनल इंटेलिजेंस इज टू रेगुलेट आवर इमोशंस एंड देन टू रेगुलेट अदर्स इमोशंस. सोशल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, these are important components of emotional intelligence. How it can be used in services? It can be learned over time. न्यूज़पेपर रीड करेंगे, लेक्सिकन पढ़ेंगे, कुछ केस स्टडीज करेंगे, अपने आप आपको पता चलेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है. मगर बेसिक टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आप लेक्सिकन से करिए. दैट्स इट. 10 दिन पढ़िए लेक्सिकन और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए बस. और जो मॉडल आंसर कॉपीज होती हैं जो इंस्टीट्यूट्स देते हैं आपको हर पेपर के बाद, उसको बड़ी मेटिकुलसली करिए. आपने क्या आंसर लिखा, आप उसको कैसे सुधार सकते हैं, वही बात. क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो. इंटरव्यू, हाँ मेंस में आईएएस बाबा में टीएलपी एक अच्छा प्रोग्राम है, थिंक लर्न परफॉर्म. 5 क्वेश्चन रोज आते हैं, वो करिए सिनॉप्सिस के साथ. दैट्स गुड. इंटरव्यू के लिए दे वांट ओनली 2 थिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस. They are not there to check your content, knowledge, etc. हाँ, there would be question based on current affairs and knowledge intensive questions भी हो सकते हैं. मुझसे knowledge intensive questions ही पूछे गए थे. 50% of my interview was on Kashmir. So मेरे लिए तो knowledge intensive जरूरी था. But they, through this knowledge intensive process, they want to check certain personality traits कि आप bluff तो नहीं कर रहे हैं. To the most obvious answers, or to the most obvious questions which everybody should know, I said I don't know. Avoid. A very interesting thing, many people would say that say sorry sir, I don't know. I would say tell them frankly, sir, I don't know. Avoid sorry in an interview. Why? You are not supposed to know everything. Sir, I have heard this name but I am unable to recall. Sir, I don't know. Sir, I am not aware. Don't be sorry. You have prepared much. You have cleared prelims, you have cleared mains, and you have reached interview stage. So these are certain traits which you should inculcate in your interview also. Don't bluff. Be transparent. एंड गिव योर बेस्ट. इंटरव्यूज के लिए हाँ 3-4 मॉक्स दे दीजिए. इट विल रिमूव योर फियर और आपको कंफर्टेबल फील करेगा वहां पे. द एक्चुअल बोर्ड इज वेरी कॉर्डियल. दे वुड वांट यू टू स्पीक. जितना अंदर है बोलते जाओ. दे विल नॉट, काउंटर क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे एक्चुअल इंटरव्यू में. मॉक्स में काफी काउंटर क्वेश्चंस होते हैं. इनफैक्ट मेरे बड़े पैथेटिक मॉक्स जाते थे, बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दोज मॉक्स ऑल्सो. मैंने अगर मगर करना छोड़ दिया मॉक्स की मदद से. मैं पहले मॉक्स में क्या करता था, शुड द 4 जजेस हैव कम आउट, दिस वाज वन क्वेश्चन पुट अप इन वन ऑफ द मॉक्स. शुड द 4 जजेस हैव कम आउट एंड से इन फ्रंट ऑफ द मीडिया व्हाटएवर दे डिड. मैं कहता था प्रोज ये हैं, कॉन्स ये हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट. So the interview board said, अगर मगर मत करो. Did the 4 judges do the right thing? हाँ या ना, and back that with logical argument. You know, through this, what do they want to check? Your decision making ability. आप एक डिसीजन पे कायम रहेंगे कि नहीं. कहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगा, आप प्रोज एंड कॉन्स गिनवाएंगे खुद को, आर्ग्यूमेंट्स फॉर और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट करेंगे. You have to have conviction and clarity in your thought while taking a decision, and to back that decision with proper arguments, logical arguments. तो उस तरह से इंटरव्यू को अप्रोच कीजिए. कॉन्फिडेंट रहिए. कन्विक्शन और क्लैरिटी ऑफ थॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं यही कहूंगा कि ये पूरी जर्नी को इंटीग्रेटेड रखिए. अब क्लैरिटी ऑफ थॉट मेंस के बाद नहीं आ सकती है अचानक से. आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अब शुड द 4 जजेस हैव कम आउट, आपने प्रोज भी पढ़ लिया, जैसे हिंदू में आर्टिकल आया था, आर्ग्यूमेंट फॉर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और न्यूट्रल. आप वो तीनों चीजें पढ़िए. आप अपनी विचारधारा 2 मिनट सोचिए कि व्हाट डू आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, व्हाट डू आई गेट फ्रॉम दिस. मेरी क्या विचारधारा है, मैं क्या समझता हूं कि उन्होंने सही किया कि गलत.
and then back that with a logical argument. So it's a process over an entire 1 year. You are not here to only clear this exam, you are here to become an aware citizen of this nation. Your purpose should be larger than just clearing this exam. The purpose has to secure your national interests. You have to brim with patriotism. अगर आपको डीसी साहब सुनना है, पावर चाहिए, गाड़ी चाहिए, every third day you will be demotivated. The purpose has to be larger than these things. So the first homework would be to find your purpose. If it is to become a great medical doctor, fine. If it is to become a great engineer, fine. If it is to become a great civil servant, yes, fine. So the first thing is to download. So the first thing is to analyze your purpose of life. Our heart has a purpose to pump blood. Our limbs have a purpose to make us walk. The stars have a purpose to give us heat and light. The gravitational force has a purpose to bind things together. If all inferior things in the existence have a purpose, then man, who is the highest evolution of existence, surely is supposed to have a purpose in life. Find your purpose. And while joining civil services, the purpose cannot be small like DC साहब सुनना है, या social recognition चाहिए, या power चाहिए, authority चाहिए, या गाड़ी होनी चाहिए. This cannot be a purpose then. The purpose has to be larger to serve national interests, and you should brim with patriotism. Only then you will clear these services. Have an integrated approach of all stages, especially prelims and mains. In interview, yes, listen to The Big Picture and India's World on RSTV. Make your opinion and be very clear with your DAF, especially your home state. The politics going on there, the governance issues going on there. If I come from Kashmir, I should know Kashmir crisis. I should know trifurcation of state. Is it a possibility? I should know AFSPA. I should know Article 370. I should know Article 35A. I should know the Kathua incidents. I should be compassionate. I should be empathetic. Not after mains, but from the day one. You need to cultivate such traits. So the first thing is to find your purpose. The second thing, when you find your purpose, download the syllabus. Become that passenger with a ticket in your hand, which has a destination clear in mind, which has a vision, a purpose, a goal, a target. And then proceed with this condensed book list. Revise them 3 or 4 times. Don't go here and there. Join a test series. Learn from feedback. Have an integrated approach, prelims, mains, and interview. When you give test series continuously, the actual exam seems just like another test paper. Really, it happened with me this time. I found as if I'm writing just another test paper. And I could psychologically handle well the questions. नहीं तो questions कैसे थे? Juno spacecraft, no one knew of it. Cryosphere, no one knew of it. Gupta numismatic art, no one knew of it. But you don't have to leave any question. You have to write from your awareness accumulated over last 1 year. Juno spacecraft. You have somewhere read Juno spacecraft during prelims कि वो Jupiter पे जाएगा, NASA का mission है. Or how it helps in evolution of Earth, understanding the evolution and origin of universe or Earth. वो आपने geography के chapter 1 में पढ़ा है, evolution of Earth और origin of universe. आप वो दोनों चीजें connect करिए और आंसर बनाइए. You will create wonders with this creativity. With this thing, I would like to take a pause and complete my and wish you all the best. Do great for your community, for your family, for your society, for your state, for your country, and for humanity. Civil services provides you a great opportunity to do this. Do this services. Thank you.